Okay, student, good morning. Today, my according to the book, lesson number 6, test and measurement in sports. Test and measurement in sport. What is a test? What is a measurement? So, there are the six topic. Number 1, motor fitness. Number one topic is a motor fitness according to this chapter. Number 2, general motor fitness. There are the 3 tests. Barrow 3-item general motor ability test, zigzag run, medicine ball, put for boys 3 kg and put of the girls 1 kg. Measurement of the cardiovascular fitness. Cardiovascular fitness in the Harvard test and Rock Post test. And next, computations of the fitness index, duration of the exercise in the second into 100 upon 5.5 into pulse count of 1 to 1.5 meal after exercise. Number last test is the Ricky and John test. This is a test for the senior citizen people. There are the 6 tests. In a 6 test is the first chair stand test for lower body stress. Number 2, arms curl test for the upper body strength. Chair sit and reach test for the lower body fitness. Flexibility test. Back stress test for the upper body flexibility. Number 5, 8 foot up and go test for the agility. And number last test for the Ricky and John test for serious citizen person. 6 minute walk test for the aerobic endurance. After completing the chapter, you will be able to perform 50-meter standing start, okay, 600-meter run, walk in the ground, sit and reach. These are tests related for the test and measurement chapter. Demonstration Barrow 3-item general motor abilities. Okay, and compute physical fitness index through Harvard test and describe the procedure for Ricky and John senior citizen test. Okay, discuss U group. What is the area the physical fitness test equivalent related to some questions this chapter. How many for you can test you want fitness? What are the criteria that, okay, and related to some question, have you heard motor fitness? What is it? How to it tested? Have you heard about the board jumps, okay. Okay, first test, motor fitness test. Okay, according to the introduction, as a matter,
The very important test, motor fitness test. ठीक है? As a matter of the fact, it is significant for endeavor to set objective which they want to fulfill in the physical education and sports program. It is also essential for determining whether or not the objective have been achieved. For example, if you want to improve your cardiorespiratory fitness, what is the cardiorespiratory fitness? Related to the heart. और cardiorespiratory systems सांस का लेना और हार्ट का जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करना, ठीक है। और जो आपकी इंफीरियर वेना कवा और सुपीरियर वेना कवा है उसके द्वारा जो है हार्ट में जो है ब्लड आना और लंग्स में प्योरीफाई, किडनी में प्योरीफाई वगैरह होकर जो है वापस जो है अपने हार्ट में जाना। द cardiorespiratory fitness. You will have to participate in the fitness program after a certain period. If you do not measure and evaluate your cardiorespiratory fitness, you may remain in dark. Leonardo da Vinci has rightly said, if you are in a mode of practice without scientific way, you are just like a pilot who goes into a ship without rudder and compressed and does not know his destinations. Okay, ये किसने कहा था बच्चों? हाँ, yes. Test and measurement in the physical education are the instrument or device for getting essential details regarding the needs, capacities, ability and attitude of the student of sport persons. Tests are used to collect information or data about a specific skills. Strength, कौन कौन सी स्किल हैं जो कंपोनेंट ऑफ द बॉडी एंड स्किल्स, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, नॉलेज, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड एक्सेट्रा. In fact, test refer to any specific instrument, procedure or technique used by an administrator to elicit a result from the person who take the test. There are the various type of tests, such is the Johnson basketball ability test. कौन सा टेस्ट है जॉनसन? ये बास्केटबॉल के लिए है, ठीक है। जॉनसन बास्केटबॉल एबिलिटी टेस्ट, हार्वर्ड यूज फिटनेस टेस्ट, कॉरस वेबर टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, सिट एंड रिस्ट टेस्ट related to the test for the physical fitness. Okay, measurement are related to the physical measurement such as the size, body size, height, weight, vital capacity, achievement, etc. Indeed, measurement refer to the process of the administrating a test to obtain the quantitative data. It can also be said that the measurement at the evaluation process in which various tools and techniques are used in the collection of data. Through test and measurement, the effect of the teaching or coaching can be determined. The progress
can be known and the further planning can be made. Okay, this is introduction for the physical fitness test. There are the some tests: Corals-Yapper test, standing broad jump test, and Johnson basketball test, motor ability test, cardiovascular ability test, and respiratory cardiovascular test, and endurance test. Related to this chapter, I will take the class some tests. Okay. So first is the motor fitness test. What is a motor fitness test? There are the 8 आइटम टू रिलेटेड दिस टेस्ट, जो हम लोग ग्राउंड में जो हम 7 तरीके से जो है हम जो प्रैक्टिस करेंगे, जो एक्सरसाइज है, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो हम प्रॉपर तरीके से अगर उस कर लेते हैं तो हमारी मोटर फिटनेस टेस्ट वहाँ पे चेक हो जाएगी। तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे लाइक दैट द फर्स्ट 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट ऑफ द 50 मीटर एंड टेस्ट, 60 मीटर रन वॉक, सिट एंड रेस्ट टेस्ट, पार्शियल कर्ल, गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग है, मॉडिफाइड पुशअप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आर यू अंडरस्टैंड? ओके, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप दोनों पैरों को मिलाएंगे और जितना लंबा आप लोग स्टेप लेके जंप कर सकते हैं एक दोनों पैरों के साथ, वो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है। तो वहाँ मेजरमेंट कर देंगे, देयर आर द 3 चांस, और उसको डेवलप करने के लिए, लॉन्ग जंप को डेवलप करने के लिए ये अभ्यास भी बेस्ट है, लेकिन हम टेस्ट में उसको यूज करते हैं कि जो जितना ज़्यादा लंबा स्टेप लेके आप जो कूद जाएंगे वहाँ पर सामने, तो वहाँ मेजर कर लेंगे कि वहाँ पर कितना कूदा है। जो ज़्यादा कूदेगा उसको नंबर 1 पॉइंट, जो ज़्यादा थोड़ा कम कूदेगा 2, और उसकी लेंथ के हिसाब से हम जो है उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम दिखाते हैं। इसी तरीके से 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 50 मीटर रनिंग होती है। उस रनिंग में क्या है कि आपको 50 मीटर तक रनिंग करना है, तो फर्स्ट आ जाता है। एजिलिटी टेस्ट है, शटल रन जिसे कहते हैं। शटल रन में क्या होता है कि हम पॉइंट बनाते हैं, वहाँ से वहाँ जिग-जैग में दौड़ना होता है। तो जो फर्स्ट आएगा उसमें उसका जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द उसकी टाइमिंग है। ओके बच्चों, तो मैं आज आपको मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। मोटर फिटनेस टेस्ट, टेस्टिंग motor fitness consists of the measuring of all component of the motor fitness, like that agility, coordination, balance, speed, reaction and reaction times. Motor fitness motor test provide to the student a score regarding the level of the fitness, effectiveness of any training program and present status, thereby motivating her or him to do better extra. Okay, following tests are the employed to test motor fitness. Number 1, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के टेस्ट होते हैं, बॉयज़ का भी होता है, गर्ल्स का भी होता है। तो बस उसमें क्या होता है कि पुलअप जंप करते हैं तो गर्ल्स को पुलअप के लिए नहीं कहेंगे, गर्ल्स को कहेंगे सिर्फ हैंग करके रखेंगे, आप रॉड पकड़कर लटके रहेंगे। आप लोग टाइमिंग नोट करेंगे कितनी देर तक लटके रहते हैं। जो नंबर 1 पे आएगा, जो ज़्यादा समय लेगा वो नंबर 1 पे, जो थोड़ा कम समय लेगा वो टेस्ट का नंबर 2 पे आएगा। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों करते हैं। ईजी है, ईजी है, वो तो ग्राउंड पर चलता है, ग्राउंड पर चलेगा। ईजी लगते हैं बेटा, लेकिन ग्राउंड पर चलता है जब वो लगातार 7 टेस्ट हम कंप्लीट करते हैं, तो उसमें हमारी मोटर फिटनेस टेस्ट का पता लग जाएगा। ठीक है, फिफ्टी मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, नंबर 1 टेस्ट फॉर द मोटर फिटनेस टेस्ट क्या है? 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग थे, अलग अलग ग्रुप है। ऐसा नहीं कि बॉयज़ को और गर्ल्स को एक साथ कंबाइन कर दिया। फर्स्ट
is a 50 meter standing start, boys and girls. Purpose, what is the purpose? To determine, या आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है, ध्यान रखना, ठीक है, पढ़ के जाना है उसको कि क्या है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज. पर्पस क्या है? फर्स्ट, टू डिटरमाइन रनिंग स्पीड एंड एक्सीलरेशन ऑफ द स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, तो जो हमारा टॉपिक है वो है मोटर फिटनेस टेस्ट. इन द मोटर फिटनेस टेस्ट देयर आर द 7 activities items related to the for motor fitness, physical fitness test. There are what is the meaning of the motor fitness? Motor fitness refer to the capacity on the athlete to take part of the effectively in his particular sports. It can also be said that the motor fitness is a person of the abilities. To do physical activities, there are the following item test to know the motor fitness of an athlete. Number 1, 50 meter standing start. अब what is the purpose of the 50 meter standing start? एग्जाम में कुछ इस तरह से ही आवेदन करेंगे. अगर एग्जाम में आ जाता है कि मोटर फिटनेस टेस्ट, व्हाट इज द मोटर फिटनेस टेस्ट, तो पहले उसका मीनिंग लिखेंगे. और अगर 5 मार्क्स में है, 1 मार्क्स का है, अगर 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो व्हाट, देखिए अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मोटर फिटनेस टेस्ट, तो उसके बारे उसकी मीनिंग लिख देंगे कि ये है जो मैंने अभी पढ़ के आपको बताया, ठीक है. दूसरा, अगर 3 मार्क्स में आ जाता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, मीनिंग भी लिखेंगे, साथ में 7 आइटम भी लिख देंगे जो नीचे दे रखे हैं, ठीक है, बुक में आपके, ठीक. और अगर 5 मार्क्स में आता है ये, तो इसमें जो है ये एक्सप्लेन करना है 50 मीटर को भी, 600 रन वॉक को भी. कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ेंगे तो आप लिख लेंगे. तो 7 को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एग्जाम में. तो फर्स्ट, कई बार एग्जाम में आ जाता है, सपोज कि एग्जाम में आ गया कि डिस्क्राइब 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, ठीक है. ये किससे रिलेटेड बताइए? मोटर फिटनेस टेस्ट से. मोटर फिटनेस टेस्ट को क्या बोलते हैं हम? हाफर्ड टेस्ट. क्या? हाफर्ड टेस्ट, ठीक है. तो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, बॉयज एंड गर्ल्स. पर्पस क्या है? यस, अभी बता देते हैं आपको. हाँ, ये आपके बुक में भी है. जैसे एक तो पर्पस है टू डिटरमाइन रनिंग स्पीड एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ स्टूडेंट. स्टूडेंट की जो है रनिंग स्पीड वो चेक करना 50 मीटर में. 50 मीटर का है, एक 100 मीटर में स्प्रिंट लेते हैं ना, तो 100 मीटर स्प्रिंट की जगह हम लोग जो है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट दे देंगे, या फिर स्टैंडिंग 50 मीटर स्प्रिंट वो डाल देंगे. तो उसमें क्या होता है, जैसे विसिल बजाएंगे तो प्लेयर्स को या स्टूडेंट को दौड़ना है. तो उसमें क्या है कि एक तो बच्चों का जो है स्टार्ट देखा जाता है कि कितना बेस्ट स्टार्ट है. दूसरा, रनिंग उसकी, कि इसकी जो है दौड़ने का जो उसका तरीका है, वो कितना स्पीड है उसमें, एक्शन में कितना जो है तेजी है. नंबर 3, एक्सीलरेशन ऑफ द स्टूडेंट. स्टूडेंट ने या प्लेयर ने कितनी तेज एक्सीलरेट किया अपने आप को, कितनी तेज निकला वहां से दौड़कर, ठीक है, वो हम लोग चेक करते हैं. पर्पस है हमारा ये, ठीक है, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट में. नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इसके? इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू कवर द सेट डिस्टेंस एज ए फास्ट एज पॉसिबल. ओके. नंबर 3, इक्विपमेंट. भाई 50 मीटर में तो कौन कौन से इक्विपमेंट होंगे? अगर हम हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? जैसे फुटबॉल है, ठीक है, और पोल होना चाहिए उसमें, फुटबॉल में नेट होनी चाहिए, फ्लैग्स होनी चाहिए. भाई फुटबॉल तो है ही है मेन, है ना. और वॉच भी होनी चाहिए टाइमिंग देखने के लिए, भाई कितनी मिनट हमें फुटबॉल, 90 मिनट का है तो 90 मिनट ही हमें खेलना है. तो इसलिए इसी तरीके से जो है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट में क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए. नंबर 1, फ्लैट एंड क्लीन फील्ड विद मार्किंग. फ्लैट एंड क्लीन फील्ड विद मार्किंग, ये होनी चाहिए. मतलब फील्ड जो है बिल्कुल क्लीन, सपाट, समतल, तेज खुरदरा नहीं होना चाहिए, पत्थर नहीं होनी चाहिए उसमें. और सबसे बड़ी बात है दूसरा जो है, स्टॉप वॉच होनी चाहिए. स्टॉप वॉच, कि स्टॉप वॉच में हमने स्टॉप वॉच का जो है रीडिंग डाल दी, भाई 90 मिनट मैच चलना है, 10 मिनट मैच चलना है, 50 मिनट
मैच चल रहा है फुटबॉल का, तो उसको हम चेक कर लेंगे इस स्टॉप वॉच से, ठीक है। जो रनिंग है वो स्टॉप वॉच से हम रीडिंग करेंगे। जब वो दौड़ेगा प्लेयर, दौड़ने पे हम काउंट करेंगे कितनी मिनट तक वो दौड़ा है, कितनी मिनट में वो या कितने सेकंड में उसने अपनी जो है 50 मीटर को कवर किया है, ठीक है। और ज़्यादा हेल्दी पर्सन है तो उसे वॉक करा भी सकते हैं, आप वॉक भी करा सकते हैं 50 मीटर की। प्रोसीजर्स क्या है इसके, इसका तरीका क्या है वो करने का। देयर विल बी डिस्टेंस ऑफ द 50 मीटर बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, starting line and the finishing line. At least 2 officials are required to successfully complete the process. One who stand behind the standing line to give command. कौन सी कमांड है? On your mark, on your mark and go along with the downward sweep of her arms, thereby giving visual signals to the other official who stand perpendicular to the finishing line to clock the timing. The student will take the standing start and run as fast as possible to give her best time. Okay, ठीक है बच्चों। एंड स्कोरिंग कैसे करेंगे हम लोग? द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द डिस्टेंस between the command go and when the student crosses the finish line to nearest 10th of a second. This is scoring. Okay, number 2, 600 मीटर रन या वॉक, ठीक है। 600 मीटर रन है। पर्पस क्या है? पर्पस है टू डिटरमाइन द एंडोरेंस ऑफ ए स्टूडेंट। पर्पस है टू डिटरमाइन एंडोरेंस ऑफ, आपकी बुक में भी वही है। ओके, आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं कि टू मेजर एंडोरेंस, एंडोरेंस को भी मेजर कर सकते हैं। टू डिटरमाइन एंडोरेंस ऑफ ए स्ट्रेंथ, इसका कहने का मतलब है कि आपकी मेजरमेंट को भी हम एंडोरेंस कर सकते हैं। जब हम रनिंग करते हैं, रनिंग करने पे हमारा हार्ट बीट वर्क करता है, सांस लेना और छोड़ना वो भी उस पर इफेक्ट डालता है आपकी फिटनेस पे या आपकी जो है रनिंग पर। आप जितनी स्मूथ आपकी ऑक्सीजन चलती है, हार्ट जितनी बीट कितने कम आपका समय लेता है, ठीक है, और जल्दी कवर करता है हार्ट बीट को, तो आपकी एंडोरेंस उतनी बेस्ट है। तो आप अपनी एंडोरेंस को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि आप कितने फिट हैं, और उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू दिस द मोटर फिटनेस टेस्ट के, ठीक है। तो आपका पर्पस टू मेजर द एंडोरेंस ऑफ अ स्टूडेंट। ओके, ऑब्जेक्टिव टू कवर द सेट डिस्टेंस एज फर्स्ट एज पॉसिबल। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव है टू कवर द सेट डिस्टेंस एज फर्स्ट एज पॉसिबल। इक्विपमेंट क्या है? फ्लैट एंड क्लीन फील्ड विद मार्किंग एंड स्टॉप वॉच। ये भी रनिंग का ही है। 600 मीटर वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। ये सीधे बैठो। इक्विपमेंट फ्लैट क्लीन ग्राउंड विद मार्किंग स्टॉप वॉच। प्रोसीजर्स क्या है इसके इसे करने का तरीका क्या है? प्रोसीजर, स्टूडेंट शुड बी informed about the distance before
the start of the run walk, and one official will be governed on your mark, set and go with the visual signal to the other officials. The student will run or walk and cover the distance. Cover the distance in the shortest possible time. The test may be done in the group, but the number of the official must be the same as the number of participations. Okay. जितनी जल्दी जो पहुंचेगा 100 मीटर या जैसे 600 मीटर का रनिंग है, तो जो सबसे पहले पहुंचेगा, जो सबसे कम समय लेगा, उसका जो है फिटनेस उतनी ही बेस्ट होगी। स्कोरिंग क्या है? द टोटल, इसके स्कोरिंग भी कर सकते हैं हम लोग, टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे स्कोरिंग है। स्कोरिंग द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द डिस्टेंस बिटवीन कमांड गो एंड when the student crosses the finish line the nearest tenth of a second। भाई जो आपकी फिनिशिंग लाइन है वहाँ तक जो पहुँच जाता है कम समय में, वो उसकी फिटनेस वो उतनी बेस्ट उसकी बताई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, सिट एंड रिस्ट टेस्ट। सिट एंड रिस्ट टेस्ट क्या है? इसमें आप पिक्चर भी दे सकते हैं कि एक बच्चा बैठा हुआ है बेंच के आगे, और वहाँ पे जो है नंबर्स लिखे हुए हैं बेंच के ऊपर जो है, और उसने अपने पैर को जो है उसमें बॉक्स में फंसा लिया है और अपने हाथ दोनों ऊपर खींच कर आगे की तरफ लाके पश्चिमोत्तासन में वो जितना आगे जा रहा है और जितना आगे तक वो नंबर गेन कर लेगा, वो उतनी ही उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाएगा। ये रिच एंड सिट टेस्ट है फॉर फ्लेक्सिबिलिटी या मोटर फिटनेस टेस्ट। मोटर फिटनेस टेस्ट में कई सारी चीज़ें आ गई हैं, स्ट्रेंथ भी आ गई है, एंडोरेंस भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कोऑर्डिनेशन भी आ जाएगा इसमें, और उसी के बिहाफ पे आपकी मोटर फिटनेस टेस्ट की जांच की जाती है। सिट एंड रिस्ट टेस्ट के लिए क्या पर्पस है? तो पर्पस है सिरियल टू सिट एंड रिस्ट टेस्ट वाज द फर्स्ट propounded by Well and Dillon in the 1952. This test is the widely used as a normal test to access flexibility। और या फिर हम टू मेजर्स ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे ना, हम कितना आगे, जितना पेट ज़्यादा आगे तक होगा हम उतना आगे तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है। जितना पेट अंदर की तरफ होगा तो हम उतना ही आगे तक अपने पैरों को छू पाएंगे सामने, या हम मार्किंग डिस्टेंस तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। पर्पस क्या है? टू डिटरमाइन ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट या टू मेजरमेंट ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेस ट्रंक as forward as possible। To stress trunk as forward as possible, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। इक्विपमेंट क्या चाहिए? इक्विपमेंट होना चाहिए सिट एंड रिस्ट टेस्ट, सिट एंड रिस्ट बॉक्स एंड मैट। मैट कहाँ है? ज़मीन पे बिछानी है, ऊपर कहीं नहीं बिछानी है, ज़मीन पे बिछानी है। उस मैट के ऊपर हमें बैठना है, सामने बॉक्स रखना है, सिट एंड रिस्ट टेस्ट का बॉक्स रखना है, और हमें उसको जो है टच करना है जिस तरह से उसमें पिक्चर में बता रखा है। प्रोसीजर्स क्या हैं? स्टूडेंट शुड सिट विदाउट शूज विद द सोल ऑफ हर फीट टचिंग द एंड sit and reach box. Both knees should be locked and presses flat to the floor. Test may be assist the subject by holding the knees down. Student to place both arms forward, palm downward without stretching. Okay. And instructions are given by the official to start the test
The student should stress forward slowly, reach as the possible with both hand without a jerk, and should hold the maximum stress positions 2 seconds. Hand and should remain at the same level. Scoring कैसे करेंगे हम लोग इसकी? The score is recorded to the nearest centimeters with the distance between the initial position and the final positions. अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले मोटर फिटनेस टेस्ट में हमने कौन सा किया? 50 मीटर स्टार्ट, ठीक, रेस है आपकी, एक तरीके से रनिंग है, रनिंग पोस्चर में हम इसे करेंगे। नंबर 2 है 600 मीटर की रनिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम लोग तो कर ही सकते हैं, ज़्यादा बूढ़े लोग नहीं कर पाएंगे। और तीसरा है सिट एंड रिस्ट टेस्ट। अब सिट एंड रिस्ट टेस्ट में जो है आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम मैट के ऊपर बैठ जाएंगे, मैट के ऊपर बैठ के जैसे वो पोजीशन है उस मैट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे, जैसे सामने बॉक्स रखा हुआ है, बना बनाया बॉक्स आता है मार्केट में, स्पोर्ट्स की दुकान होता है, बनवा भी सकते हैं आप लोग। ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रक फ्लेक्सिबिलिटी को मेजरमेंट करने का है। कमर रद्द सीधी रहेगी, यहाँ पे मार्किंग बनी होगी ऐसे करके, सेंटीमीटर में होंगी वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 25 26 20 50 तक, यहाँ तक भी आपकी मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने हाथों को पैर आपके उसी पोजीशन पे रहेंगे, आपकी फीट जो है सामने देखिए, ठीक है, आप धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है, धीरे जाएंगे, आपकी फिंगर जहाँ पे टच होगी, सपोज कि हमारी फिंगर यहाँ पे टच होगी आगे तक, और जितना पेट आपका कम होगा उतनी ज़्यादा आगे जाएंगे, उतनी उस वहाँ हाथों पहुँच गए हम लोग, तो वहाँ पे हम मार्किंग लगाएंगे, और फिर हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे, तो हम फिर कुछ अभ्यास करेंगे जब उसको सही करना है, और आगे तक हमारा हाथ लिया है, और आगे हम तभी जा पाएंगे जब हमारे पेट की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है। हम इसे मेजर कर लेंगे और वहाँ पे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। ऐसे ही हम क्लास के प्रत्येक बच्चे से इस कार्य को कराएंगे, और उससे जो है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को पता कर पाएगा कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। उसी के हिसाब से उन बच्चे की या उस प्लेयर की हम लोग जो है मोटर फिटनेस टेस्ट का मेजरमेंट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, तभी चैप्टर का नाम रखा है टेस्ट एंड मेजरमेंट। ओके स्टूडेंट, ओके, एक नया टेस्ट इसमें है, यस, इसमें पिक्चर नहीं दिखाई गई है, मैं आपको समझा देता हूं। कर्ल अप टेस्ट, ठीक है, पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, ओके। अब ये कैसा होता है, देखिए आप लोग, मेरे पास जो है यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। थोड़ा समझ में आ जाएगा तो मैं आपको जो है और समझा दूंगा अभी थोड़ा सा। दिस लाइन फर्स्ट, आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है, दैट क्या पोजीशन है, दिख रहा है आपको, ठीक है। सेकंड नंबर लाइन, थर्ड नंबर लाइन, कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये लाइन फोर्थ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बहुत देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये टेस्ट भी हमारी जो है एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी कहिए या फिर स्ट्रेंथ कहिए आपकी स्पाइनल कॉर्ड की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक योगा मैट लेंगे, कोई भी मैट लीजिए, आप दरी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और उस पर आप जो है 2 रेखाएं खींचिए, ठीक, 2 रेखाएं आपने खींची। अभी आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा ये भी टेस्ट मेजरमेंट है,
ये आपकी योगा मैट होती है 6 फीट के करीब होगी, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है 6 फीट, ठीक। यहाँ पे एक मार्किंग आएगी, ये मार्किंग आप टेप से डाल सकते हैं, टेप से, ब्लैक कलर की टेप से आपने उस पर मार्किंग कर दी। फिर जो स्टूडेंट है या प्लेट्स है उस पर लेट जाएगा, ठीक। अपने पैरों को बेंड करेगा, बेंड जैसे तुम दिखा रहे हो पिक्चर में, मतलब बेंड करेगा। और आपकी बेंडिंग की जो एंकल है वो इस वाली लाइन पे आनी चाहिए और आपका सर इधर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से पोजीशन होगी, ठीक है। ये आपके लेग्स हैं, ठीक है। ये आपको उठना है, ठीक। तो उठने के बाद आपकी 2 मार्किंग है, एक मार्किंग तो ये वाली है, एक ये। आप इस वाली मार्किंग पर अपनी फिंगर रखिए, थोड़ा सा आप इस तरह होंगे और बैठकर अपने हाथों को आप अपने आगे तक ले जाइए। तो जितना आगे तक आपका हाथ जाएगा वो आपकी जो है एक तरीके से मार्किंग हो जाएगी, या एक तरीके से आपकी मेजरमेंट हो जाएगी कि आपके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। आगे इसको हम एक बार समझ लेते हैं, ये है क्या चीज़। आपकी बुक में भी है ये, लेकिन पिक्चर नहीं है। तो ये जब हम आपने सेटअप लगाया ऐसे करके, कभी सेटअप लगाया, वही कंडीशन है। बस इसमें क्या है, सेटअप में आपके हाथ इधर रहेंगे और इस वाले टेस्ट में हाथ नीचे रहेंगे। आपने हाथों को आगे तक घसीटते हुए ले जाइए, जितना आगे तक आपका हाथ जाएगा फिसलते हुए, तो वहाँ तक आपकी मार्किंग की हम लाइन मार देंगे कि भाई इतने यहाँ तक आपका हैंड आ रहा है। तो इसकी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम है। एब्डोमिनल, स्टमक को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है। आइए हम जानते हैं क्या चीज क्या है ये। टू मेजर टू टेस्ट द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स को टेस्ट हम करना है, ठीक है। इन फैक्ट स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल मसल्स आर सिग्निफिकेंट फॉर मेंटेनिंग गुड पोजीशंस, हिप अलाइनमेंट एंड इट प्रिवेंटिंग लो बैक पेन। ओके, ये आपके इसकी आपका जो है पर्पस है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इसको एक शॉर्ट उसमें अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पर्पस क्या है इसका। पार्शियल कर्व अप जो है इसका पर्पस क्या है, टू डिटरमाइन एब्डोमिनल, टू मेजर्स एब्डोमिनल पार्ट स्ट्रेंथ, इसकी ताकत, पेट की ताकत, एंड एंड्योरेंस ऑफ द स्टूडेंट, इसकी एंड्योरेंस क्या है, क्षमता क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी देर तक हम लोग जो है होल्ड कर सकते हैं, कितनी देर तक अपने हाथ को ले जाकर वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर करने का है। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, मोटर फिटनेस टेस्ट को जानने के लिए उस प्लेयर की, ठीक है। तीसरा टेस्ट है। ये सारे टेस्ट जब हम करेंगे और उसके नंबर भी देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है, तो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, अगर आपने 7 में से 4 क्वालिफाई कर लिए हैं, 5 क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आप 1 पे आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप मीडियम है या डाउन मोटर फिटनेस टेस्ट में हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टू परफॉर्म as many as curl up as the possible in the giving time. Okay, equipment क्या चाहिए, equipment gym mat with 2 parallel line 6 inches apart. ये कितने इंच का होगा यहाँ पे क्या, 6 inches apart. ओके, इक्विपमेंट। फिर प्रोसीजर क्या है, इसका तरीका क्या है। स्टूडेंट शुड ले इन द स्पाइनल पोजीशंस ऑन द मैट विद नी फ्लेक्स एट द एंगल ऑफ 19 degrees. Feet should be placed apart and hand should be placed strength and parallel to the body. Okay, the student will pull upper body curling up a list 6 inches above the surface of the mat and 6 inches toward the parallel steps. Okay,
movement should not be jerk, and the upper body must come down slowly the back mat. Okay, the complete cycle of the recycle rising up and going back down will be counted as one curl up. Okay, scoring क्या है? Maximum number of partial curl up completed without rest in the 30 second will be recorded. 30 सेकेंड होल्ड करना है और उसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो कौन सा है? आज हम थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे इसको, सिलेबस थोड़ा लंबा है। तो पुशअप बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप गर्ल्स। अब गर्ल्स के लिए अलग है और बॉयज़ के लिए अलग पुशअप है, ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे अभी। पुशअप के लिए हम लोग क्या पर्पस है, पुशअप का क्या पर्पस है हमारा? पुशअप का पर्पस है टू मेजर अपर बॉडी एंडोरेंस ऑफ द स्टूडेंट। अपर बॉडी का जो है ये अपना वेस्ट कमर से ऊपर वाला हिस्सा जो है अपर बॉडी एंडोरेंस ऑफ ए स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू परफॉर्म एज एनी पुशअप एज पॉसिबल इन द गिवन टाइम। इक्विपमेंट क्या है इसके? जिम मैट वो होनी चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर्स क्या है इसके? मेल स्टूडेंट will take face down positions in which hand should be placed slightly apart from shoulder. Knees, back and neck must be right and straight. In the positions, the student palm and toe with touch the ground. The position will remain the same of the female student except their knees should touch the ground. A student will lower the body by flexing elbow till 19-degree flexion at elbow joint and come back to initial positions in a both position, but must be stand remember in the starting position. Stomach should not touch the ground. स्कोरिंग कैसे करेंगे हम इसको? द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पुशअप रिकॉर्डेड विदाउट रेस्ट विल बी काउंटेड एज द स्कोर। ओके स्टूडेंट, सो टुडे माय टॉपिक रिलेटेड टू द नॉट कंप्लीटेड बट देयर आर द लेफ्ट ओनली मॉडिफाइड पुशअप गर्ल्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड एजिलिटी। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा इस बारे में, ठीक है। गर्ल्स की मॉडिफिकेशन क्या है इसमें क्या है कि आपको जो है पैरों को फोल्ड कर लेंगे, बैठकर पैरों फोल्ड कर लेंगे उसमें, या जो नीज है वो ग्राउंड पे लगा सकते हैं आप लोग, तब आप डिस्क मार सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं। ये गर्ल्स के लिए है। बॉयज़ के लिए क्या है? बॉडी बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ये दो फर्क हैं, इनको याद कर लेंगे, एग्जाम के लिए तैयार कर लेंगे। एग्जाम में कोई भी टॉपिक इसमें से आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर MCQs इसमें से फर्स्ट टर्म में आएंगे। So, student, thank you very much. Okay. God bless you.